गेट 2021 कॉन्क्लेव फॉर मैकेनिकल इंजीनियर। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम करेंगे नॉन टेक्निकल सेक्शन की बात। और नॉन टेक्निकल सेक्शन में रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड विल बी डिस्कस्ड बाय मिस्टर आशुतोष शर्मा, engineering mathematics will be discussed by Mr. Puneet Sharma and English will be discussed by Mr. Srinivas। आज जानने की कोशिश करते हैं इन सब्जेक्ट्स में किस तरह के सवाल आते हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, उनका सोर्स ऑफ स्टडी क्या है, प्रिपरेशन कैसी करनी है, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, और एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश करते हैं कि उनके आंसर्स क्या हैं। तो दोस्तों आइए लेते हैं टूर इन सब्जेक्ट्स का। Dear students, greetings for the day and a very warm welcome to GATE Conclave. I will be dealing here with the reasoning and aptitude part of GATE Conclave. My name is Ashutosh Sharma and I've been guiding students for almost past 20 years, out of which 10 years have been for CAT for IIMs, and the later part of the journey, 10 years have been exclusively with Made Easy for guiding students for GATE and Engineering Services exam. So this year there are few changes, minor changes that have been introduced. We'll be discussing all those things apart from what are important topics. How do we need to deal with all these things in my subsequent presentation and slides. So before even I start, let's understand that reasoning and aptitude is almost 10% of the total marks assigned for GATE. So roughly, approximately it is 10% of 100, which is 10 marks, though the exam have varied the number of questions as well as marks, but approximately we can say it is 10%, which is a huge chunk. And the most important part is that for scoring these 10 marks on 100 will require less than 15 minutes. Moreover, as soon as we will log in into GATE paper, the very first 10 questions that will appear on the screen will be general awareness. Now see, general awareness will mean general aptitude. General aptitude will mean here English plus reasoning and aptitude combined, which is overall for 15 marks. Please make very sure that reasoning, aptitude plus English combined is for 15 marks, out of which generalization we can do a broad generalization that reasoning and aptitude is for 10 marks and the English is for 5 marks, though there have been minor variations here and there. दो बातें यहाँ पे समझनी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2010 से लेके 2020 तक रीजनिंग एप्टीट्यूड started appearing in GATE only from 2010 onwards. Up till 20, the syllabus is almost unchanged, right? It had remained absolutely same for these 11 years, right? पहले जो 10 क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखने वाले हैं, पेपर ओपन करते ही वो जनरल एप्टीट्यूड सेक्शन के होंगे, जिसमें कि इंग्लिश और एप्टीट्यूड रीजनिंग कंबाइंड होगी, जो कि एग्जैक्टली 15 मार्क्स का होगा, जिसमें माइनर वेरिएशन इंग्लिश और एप्टीट्यूड के मार्क्स का हो सकता है, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूं। अब आप इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना होएं, क्योंकि वर्बल एबिलिटी का सेक्शन कोई और फैकल्टी इंग्लिश एक्सपर्ट हमारे कवर करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज ये कंबाइंड सिलेबस आईआईटी रेफर करता है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। इंग्लिश के रिगार्डिंग यू विल फाइंड अ separate video, there is no problem about it, right? So I will move on to here. ये चार हमारे पार्ट हैं। सिलेबस काफ़ी वेग ढंग से ये डिफाइन करते थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन. This was earlier a very vague way of defining the question, but let me tell you what all they used to cover. क्वेश्चन नंबर सिस्टम से लेके परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, मिक्सचर्स, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, बेसिक स्टैटिस्टिक्स, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस। और लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ है कि एक क्वेश्चन कैलेंडर से भी आया है। सो ब्रॉडली SICI से भी 2-3 क्वेश्चन देखे जा सकते हैं। तो ये कुछ जैसे कैलेंडर, SICI, ये थोड़े लेस इंपॉर्टेंट एरिया है। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, नंबर्स, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उन पे हम आके बात करेंगे। बट ये जो 4 पॉइंट्स मेंशन करता था up from year 2010 till 2020, this was
these four area, which was a very vague way of defining the question, though the question have been mostly from these area what I have talked about, right? And you can refer to the GATE previous year question, which definitely any serious aspirant, you need to solve each and every GATE question twice. So I will be discussing all these things. This was what used to be the syllabus. Now there is hardly any major change in the syllabus. New syllabus in this year, verbal portion will be dealt with some expert verbal faculty. I will be moving on to reasoning and aptitude. See, it is same data interpretation, which will be dealing in 2D and 3D graphs, pie chart, bar graphs, histogram. There can be a question based upon caselet of the data. Then again percentage, exponents, PNC, geometry and mensuration of late have been an upcoming area in GATE, and GATE have been predominantly, even engineering services as well as GATE have been predominantly, we can find good questions on geometry and algebra as well. So and elementary statistics will involve things like mean median mode, it will involve average and basic standard deviation. So all these things, ये सारी चीज़ें जो थी पहले भी थी और अभी भी है, अब उसने थोड़ा इसे एक्सपैंड करके वहाँ पे मेंशन कर दिया, rather than in a more elaborated form. And see, the topic is same, data interpretation, numerical computation. We have seen here it was numerical computation, numerical ability, numerical estimation, numerical reasoning and data interpretation. Same thing will happen here. This is data interpretation, numerical computation. Here it is. Now one thing, numerical relation and reasoning, right? Everything is same. There is no deduction from the syllabus. Syllabus से कुछ minus नहीं हुआ है, but एक minor चीज add हो गई है. There is no any subtraction had not happened from the syllabus. Anything had not been removed or deleted from the syllabus. But कुछ add हो गया, उसके ऊपर मैं आऊँगा. नाउ एक ये इंग्लिश का साथ में यहाँ पे मेंशन करने की बात है, ये एक टॉपिक है जिसमें कि स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं. लॉजिक डिडक्शन एंड इंडक्शन एनालॉजी. प्लीज मेक श्योर इट इज नोन एज क्रिटिकल रीजनिंग इन इंग्लिश. दिस पार्ट इज syllabus of English and it is not a syllabus of aptitude and reasoning part of it. Because verbal ability में भी, English में भी, there will be verbal ability and then verbal reasoning, right? So it is verbal reasoning. ये English का reasoning part हो गया, right? और ये हमारा aptitude का reasoning part हो गया, numerical relation and reasoning. This is aptitude का reasoning part and that is verbal ka reasoning part. So so that I can make everything crystal clear, so I am highlighting it because otherwise the students will say what is this, this thing is not dealt in the video, this will be dealt with English language faculty. Now this is the new part, spatial aptitude. This is the new part that have been introduced, though some part of it have been asked in GATE earlier in form of geometry, where they have done something about rotation. They have asked folding and formation of 3D objects. They have already few questions of this type, but there is something minor new thing that I am going to highlight here. Spatial aptitude will mean spatial will mean dealing with the space. So that means there will be figures, mirror image, then there will be things like involving things involving cutting, pattern, folding. So which is I think it had been directly borrowed from civil services aptitude test and a couple of exams like railway and banking exam. तो ये जो क्वेश्चन होते थे, ये इसका एक पार्ट तो ऑलरेडी गेट पूछा करता था जो बहुत अच्छे क्वेश्चन होते थे, बट इसमें जो नया पार्ट है वो जैसे कुछ there are 4 figures which are given to us, which will be the 5th one. So these type of questions usually they appear in exams like bank, railways and other exams and civil services aptitude test as well. तो ये वहाँ से कुछ इन्होंने borrow करा है. This is the minor change that have been introduced, else everything is intact. Now this is the added topic, spatial geometry. I have already told you spatial will means regarding to the space, means whatever is drawn, and so what will be the folded figure look like, what will be the mirror image of this figure and all these things. Though a part of it have been already covered in solids which we usually discuss in class, but the new part will be this.
Let's move on to here. This is the only minor change that had happened here. देखिए सिलेबस से हटा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो चारों बातें हो, न्यूमेरिकल एस्टिमेशन, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड न्यूमेरिकल रीजनिंग, जो वो बोलता था वो वैसे ही इंटैक्ट है. तो सिलेबस से रिमूव कुछ भी नहीं हुआ. क्या ऐड हुआ है? थोड़ा सा छोटे एंड यू डोंट वरी अबाउट दिस एरिया, बिकॉज यूजुअली व्हाट वी हैव सीन सी सैट में या इधर उधर अगर आप किसी भी एग्जाम में देखेंगे, the questions from this topic are mostly very common sense based, and no special training will be required for it. Though I will largely cover all these things in my lectures, that will not be an issue. Or you can refer to those who are not made easy classroom student, तो वो सी सैट के पेपर में से ये सेक्शन देख सकते हैं. वो बैंक और रेलवेज इस टाइप के एग्जाम में जहाँ पे फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से इसको थोड़ा चेक कर सकते हैं. इसमें कोई चीज़ रोटेशन हो रहा है 45 डिग्री से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, कुछ इस टाइप का हम ऑलरेडी डायरेक्शन में भी डील करें. एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू स्पेस will be known as space, means we are occupied by the space everywhere. So anything that deal with the space, उसे हम special aptitude, right? So इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ अ वेरी माइनर थिंग. और ये क्वेश्चन जो होगा वो बहुत ही कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं. नो हार्ड एंड फास्ट वेरी स्ट्रॉन्ग idea of the concept will be required, right? It's a mere test of visualization plus a bit of logical thinking. So and remove topics are none. So ये याद रखेंगे, जो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे. प्रत्येक क्वेश्चन को आपको कम से कम 2 बार आप उनको करेंगे, क्योंकि वहां से आपको आइडिया मिलेगा व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे हैव आस्क्ड. एंड आई विल बी कवरिंग फ्यू क्वेश्चंस हियर. उसके अलावा मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगा, बट मेरी हमेशा आपको एडवाइस है, यू गो थ्रू दी complete list of the topics that have been mentioned in the workbook. Do not leave any topic, because the way the cutoff have skyrocketed, at least in mechanical engineering, so you cannot leave anything unchanged. So leave no stone unturned. जम के आप मेहनत करिए. और सबसे अच्छी बात जो है कि ये जो आपको तकरीबन, मैं मार्क्स पे भी आऊँगा, क्या वेटेज है, तकरीबन जो मैंने कहा 10 मार्क्स का एप्टीट्यूड है, ये आप 15 मिनट्स में स्कोर कर सकते हैं. डैट मीन्स देयर इज अ हाई डिविडेंड. विद रिस्पेक्ट टू टाइम वी आर गेटिंग 10 मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली in less than 15 minutes, and if we include English, so roughly 20-22 minutes maximum you can get complete 15 marks in 20-22 minutes, or maximum in 25 minutes, which will be very less as compared to the any other core technical syllabus. तो 2 बातें हमको मेनली समझ में आई. रीजनिंग एप्टीट्यूड तकरीबन 10 मार्क्स का आता है, 10% हो गया पेपर का. कुछ उसमें 2 मार्कर होंगे, कुछ उसमें 1 मार्कर होंगे. और मेन बात, इनको करने के लिए जो हमें टाइम चाहिए वो हमें बिल्कुल 15 मिनट में, इनको विद इन 15 मिनट्स वी शुड बी एबल टू मैनेज इट. एंड इट इज़ रीजनेबली वेरी फेयर, वेरी सिंपल, बिकॉज कोर्स भी जो है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है. तकरीबन 20-25 मेजर टॉपिक होते हैं जिनसे कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्कोर एक्सेप्शनली हाई, क्योंकि मेरे पिछले 10 साल का जो तजुर्बा मेडिजी के साथ रहा है, तो मैं एक चीज़ श्योरिटी से कह सकता हूँ, कोई भी टॉपर जो स्टूडेंट होता है, आई हैव सीन दे हैव स्कोर एक्सेप्शनली हाई मार्क्स इन रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. शायद ही कोई ऐसा स्टूडेंट मुझे मिला हो जो कि टॉपर्स में हो और उसके मार्क्स रीजनिंग एप्टीट्यूड में कोई उससे गलती हुई है. सो हियर यू कैन ईजिली स्कोर whatever be the weightage of reasoning and aptitude, you can easily score full marks. I will say you have to score complete marks in this section in order to stand among the toppers, right? मेरे बच्चे, अब मैं इसके वेटेज पे आ जाता हूँ. 2010 till 2013 reasoning and aptitude had been for 9 marks. What was the division? 4 questions each carrying 2 marks and 1 question carrying 1 mark. That will make it 9 marks मेरे बच्चे. और ये कितने क्वेश्चन से आए?
4 and 1, 5 questions were there, and this was fixed across the branches, be it civil, mechanical or computer science or for that matter any other branch. ये बिल्कुल फिक्स था. 5 क्वेश्चन हर एक में पैटर्न ये होता था और 9 मार्क्स का ये था. 2014 it was for 12 marks, 15 till 17 it was for 10 marks, and 2018 reasoning and aptitude find a upsurge in GATE and it was for 13 marks, which was summing from 8 questions, right? This was the maximum marks that have appeared in GATE from reasoning and aptitude, right? 2019 9 till 12 marks. See, up till here it was almost fixed in all branches, so I'm not doing here any branch wise distribution because it was same. Now from here they started doing differential marking in different branch. Say mechanical it was for 9 marks, computer science it was for 10 marks. So rather than giving you all details and making it very cumbersome and a very tedious process, मैं आपको इस बहुत ही simplify ये चीज़ यहाँ पे कर देता हूँ. 9 till 12 marks will mean depending upon one branch to other. This is the range from one branch to other. So we can approximate it to be 10 marks. And same thing had happened in 2020. 8 till 11. 8 till 11 will again average out to be 10 marks. ये मैं इसलिए यहाँ पे ऐसा कर रहा हूँ. Set 1 Set 2 होता है branches का. उसके अलावा अलग अलग ब्रांच का डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ 2 मार्कर 1 मार्कर देने से काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा प्रोसेस. हम इसे रफली जर्नलाइज कर लेते हैं क्योंकि मोटा मोटा बात हमें बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए. मैं क्या बताना चाहता हूँ, 8 to 13 मार्क्स का ये पेपर आया है. मिनिमम हैड बीन 8 एंड द मैक्सिमम हैड बीन 13, राइट? here 8 questions coming to 13 marks was the high weightage. Now apart from it, what from how many questions are asked? 5 to 8 questions have been asked, not less than 5 and not exceeding 8 questions, right? So ये बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया होगा. इसे कॉम्प्लेक्स करने की जगह क्या क्या पैटर्न था ये सब मैं यहाँ पे लिखूं, उसको आसान बनाने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एवरेज आउट टू बी 10 मार्क्स. सो इट इज वेरी सिंपल, फॉरगेट अबाउट द एंटायर थिंग, यू से इट इज 10 मार्क्स ऑन total of 100 marks, right? How many questions? 5 to 8 questions, then it can vary from 8 to 13 marks. And overall gate we know as such in बी सिंह सर ने इससे पहले बहुत अच्छा वीडियो बनाया है जिसमें कि उन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया है. गेट में ओवरऑल 65 क्वेश्चंस होते हैं टू बी डन इन 180 मिनट्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द पेपर इज 100. 65 क्वेश्चन, 180 मिनट इज द टाइम ड्यूरेशन एंड मैक्सिमम मार्क्स इज 100, जिसमें से कि रीजनिंग एप्टीट्यूड आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन है. मैंने आपको पिछले 10 साल का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे दे दिया, इनफैक्ट 11 ईयर्स 2010 till 20. तो ये हमारा approximately 10% which is a huge chunk, which I have already told you about. It's a huge chunk, and above all the best advantage is that time required for solving the question will be very less. These 10 marks in 15 minutes, what rich dividend with respect to time we are getting here. So this is there. Now let's move forward. तो आप इसके complexity में जाने की जगह इसे बिल्कुल simple कर लीजिए, simplify कर लीजिए चीज़ों को. 10% of the paper. Now here it is. Let's move on to I hope the point is absolutely fair enough, right? Now let's understand what type of questions are asked and how we need to go about it, right? So I will take you towards some gate question. Here is a gate question. So इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज़ ये है क्योंकि ऐसा एक नहीं, ऐसे 3-4 क्वेश्चन आए हैं जो कि गेट में आ चुके हैं. ये क्वेश्चन 2011 का है. Exactly almost same question with a minor variation had appeared here in 2020 as well. So here is the question. So how we, this is some of the end terms of the series this. Now this is a very simple question, so I'm going to tell you, and the question carry 2 marks. So without wasting any time, we are moving on to the solution of the question here. You can, if you want, you can pause the video and try to solve it on your own. So here I will always highlight that most of the
questions, they need to be tried by option, solve question by option, truncate the question to a shorter question, and put external values. These are things that are going to work for lot of questions, especially in algebra, right? और स्पेशली इन सीरीज. अभी हम यहाँ पे इसका सम अगर करना चाहते हैं, बेस्ट वे इज, ये पूरा एसएन था, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा एसएन था. इफ आई वांट टू मेक हियर S1, that means sum up till first term, what I'm going to use here is, see guys, what I'm going to use here is, if a thing is generally true, then it have to be true for any particular value. If any of these formula 4 option will give us the value right for Sn, then it have to give value right for S1 as well. जो चीज़ हमें Sn का वैल्यू सही बताएगा वो हमें S1 S2 यानी सम अप टिल 1 टर्म सम अप टिल 2 टर्म भी सही बताएगा. ऐसा थोड़ी होगा कि n इक्वल टू 11 पे ही जाके सही बताने लगेगा. सो सम अप टिल फर्स्ट टर्म, we will truncate the series up till here. Sum up till first term should come out to be 4. Sum up till first term should come out to be 4, right? Sum up till first term for the series is 4. So what I'm going to do here, you can put n equal to 1 in all the option. Due to limitation of time, I will be putting it here only. 4 upon 81. I'm using option number C here. What will happen? 10, 1 plus 1, that is 10 square, which is 100, minus we have 9 into 1, minus 10. So what we are going to get here is, this is 100 minus 19, which is 81. So what we have, 4 upon 81 into 81, that will eventually come out to be 4. Sum up till first term is coming out to be 4. You can try by all other option in order to save your time. I'm not putting in all other options, right? So none of the option will give me S1 as 4. S1 और किसी भी ऑप्शन से 4 नहीं आता. सम अप टिल फर्स्ट टर्म फॉर द सीरीज इज 4. एंड एग्जैक्टली सेम सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन have been repeated in GATE 3-4 times. This year 2020 you can find the question in GATE. So this is sum up till first term is coming out to be 4. From which option? From option number C. आप A, B और D में भी रख के चेक कर लेंगे. sum up till first term और किसी भी ऑप्शन से 4 नहीं आएगा. तो ये 100 है, minus 19, which is 81, 81, 81 cancel out, we have here 4. So let's see here. So we can put n equal to 1 in all the options, and sum up till first term is coming out to be 4. No other options is going to give me sum as 4, और किसी ऑप्शन से sum 4 नहीं आता है. ठीक, आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं. ये MSQ टाइप का दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन है. MSQ में मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट. इन क्वेश्चंस के लिए कोई भी पार्शियल मार्किंग नहीं है. और एक चीज़ ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन टफ नहीं है, बट इसलिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएंगे एग्ज़ाम में क्योंकि चांसेस ऑफ कमिटिंग एरर हेयर विल बी एक्सेप्शनली हाई. क्योंकि जब तक आप जो तमाम ऑप्शन सही हैं उन सभी ऑप्शंस को आपको टिक करना पड़ेगा. देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट मार्क्स आउट ऑफ इट. देयर इज़ नो पार्शियल मार्किंग फॉर दिस, एंड ऑब्वियसली देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इट. तो आप एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए, इन क्वेश्चन में आपको बहुत ही सावधानी से, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा विजिलेंट, एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. देखते हैं, फंडा सिंपल है यहाँ पे. r-6 इक्वल टू 11. मॉड ऑफ r-6 इज इक्वल टू 11. तो ये अंदर वाला फंक्शन जो है, यदि ये 11 होता तो इसका मॉड 11 आता, और इवन इफ इट इज -11 देन ऑल्सो द मॉड विल बी इक्वल टू 11. सो अंदर वाला जो फंक्शन है, इट कैन बी 11 और इट कैन बी -11, राइट. 11 का मॉड भी 11 आएगा, और ये अंदर -11 भी होता तो भी 11 आता. तो यहाँ से हमें एक बार r-6 को 11 रखेंगे और एक बार r-6 को -11 रखेंगे. So r-6 can be equal to 11 or r-6 can be equal to -11. So we are going to get r is equal to 17, and we are going to get here r is equal to -5. Good. And same thing we can do here for mod. Mod is coming out to be 8. So once we can put it as 8, and once we can put it as -8. So it will be 20 upon 2. Now q minus 12 can be equal to 8 और it can be equal to -8. आप एक बार 8 रख लीजिए, एक बार -8 इसको रख लेंगे. 20 upon 2 which is equal to 10, और q का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, इट शुड बी इक्वल टू +2. 4/2 दैट इज इक्वल टू +2. तो मेरे बच्चे यहाँ पे q के 2 वैल्यू आए और r के 2 वैल्यू आए. सो हमें अब यहाँ पे क्या करना है, हमको q अपॉन r यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो q कैन बी डन इन 2 ways, r कैन बी डन इन 2 ways. q अपॉन r कर लीजिए,
10 upon 17 will be the one value, another value will be equal to 10 upon minus 5. बेटा ध्यान दीजिए 10 upon minus 5 that is equal to minus 2, and then q upon r can be 2 upon 17 and q upon r that is equal to minus 2 by 5. नीचे minus 5 है, कोई बात नहीं, उसे नीचे लगाएं ऊपर लगाएं उससे कोई फर्क नहीं है. दिस इज 2 अपॉन माइनस 5 विच इज माइनस 2 by 5. नाउ वी नीड टू लुक फॉर मिनिमा एंड मैक्सिमा. सो व्हाट इज मिनिमा? माइनस 2 इज ऑब्वियसली द मिनिमा. ये वैल्यू बड़ी है माइनस 2 से, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी. सो मिनिमा इज माइनस 2. नाउ बी केयरफुल दैट इज ऑल्सो आस्किंग अबाउट द मैक्सिमा. ये नहीं आगे बढ़ जाएंगे ए को मार्क करके. तो इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा विजिलेंट होने की जरूरत है. क्वेश्चंस will not be tough but they are very chances of committing error here will be high. तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं. मैक्सिमा वैल्यू ऑब्वियसली 10 अपॉन, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया है वैल्यू जो कि मैक्स है, और ये हमारा वैल्यू क्या आ गया है जो कि मिन है. तो मैक्स वैल्यू क्या आ रहा है, 10 अपॉन 17 इज मैक्स वैल्यू, और ये माइनस 2 इज मिन. कंफ्यूज मत होना, नंबर लाइन में जितना नंबर लेफ्ट में होगा वो उतना छोटा होता है. माइनस 2 इज श्योरली लेस देन माइनस 2 by 5. ये कंसेप्ट में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए. सो ए एंड डी हैव टू बी करेक्ट हियर. एंड विल गेट मार्क्स ओनली व्हेन विल मार्क ए एंड डी, देन ओनली विल गेट मार्क्स फॉर इट. ऐसे नहीं ए मार्क कर दिया तो जो भी अलॉटेड मार्क्स है उसका आधा मिल जाएगा. नो, देयर इज नो partial marking in this. And please make sure that you need to be extra careful about these type of questions. क्वेश्चन के कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं होने वाला है, कंसेप्ट जो हैं वही रहेंगे, बट इन क्वेश्चंस में वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट. मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट. सो काइंडली मेक श्योर दैट यू पे ड्यू अटेंशन वाइल सॉल्विंग दीज क्वेश्चन इन पर्टिकुलरली. ये पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है MSQ, जैसे कि बी सिंह सर ने अपने वीडियो में भी बताया, और आपको गेट का जो डॉक्यूमेंट है उसमें भी मेंशन है. सो आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट इट. सो हेयर आई एम सॉल्विंग 10 and minus 5 and 10 and 2, and what we have done, we have calculated the two values, right? तो मेरे ख्याल से इसमें कोई किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पार्ट जो वो नए सिलेबस में एक छोटा सा उसने पोर्शन लिखा है, ऐसा नहीं, उसमें कुछ पार्ट जो है ऑलरेडी आता भी रहा है. सो इट इज़ नॉट that they have already asked question based upon few rotation of solid and few folding of the paper. These are good variety of question which have been already done, but relatively simpler easy variety they are going to introduce from this year, which have been borrowed from exam like CSAT and various other exams like bank and figure based questions. Now here it's a good question. We'll see, from a circular sheet of paper of radius 30 centimeter, a sector of 10% is removed. If the remaining part is used to make a conical surface, then the ratio of the radius and the height of the cone. Here lies the question. Now we know area of the complete circle is pi r square. So what I'm going to do here, it is pi into r square. Radius is 30. 900 pi was the original area of the circular sheet. बहुत अच्छे से बेटा इसे समझ लीजिए, अच्छा एग्जाम्पल है एक. Or it had appeared in GATE, in EC, and the year being, everything is mentioned here. Once I will remove this, you will be able to see it's a previous GATE question from 2015, I think. Now this is the area of the circular sheet. A sector of 10% have been removed. If a sector of 10% have been removed, that will mean we need to do this area reduction by 10%. In percentage we already know how to reduce a value by 10%. We multiply it by 0.9. This is the available area. Earlier the area was 900 pi. Now it had been reduced to 810 pi. Right? This is the area. How we can see it? This is a circular sheet and a 10% area have been taken out from here. Right? 10% area have been taken out from here. That means a reduction of 10% have happened here. This is what is available to me now. Right? This is the area which is folded to form a cone. This is folded to form a cone out here. So this area, which is the available area now, this area is forming a cone. What area of the cone? The curved surface area of the cone. See, it's an open cone. There is no base here. So it is forming the curved surface area of the cone.
Once again, make sure complete area of the circular sheet was pi r square. It had been reduced by 10% because 10% is thrown away, taken out. This area will now form the lateral surface area of the cone. So lateral surface area of the cone will be pi r and L. Pi r and L. Let's see here. अब मैं आपको L का एक बार समझा देता हूँ. L जो पहले सर्कुलर शीट का रेडियस था, मेरे बच्चे ध्यान से देखेंगे, जो कि पहले सर्कुलर शीट का रेडियस था. मेरे बच्चे सर्कुलर शीट का रेडियस कितना था? 30 जो सर्कुलर शीट का रेडियस था वो अब यहाँ पे क्या बना रहा है मेरे बच्चे? स्लांट हाइट ऑफ द कोन बना रहा है. अच्छे ढंग से यहाँ पे देख लेंगे, जो यहाँ पे सर्कुलर शीट का रेडियस है 30, अब वो कोन के लिए क्या बना रहा है? स्लांट हाइट ऑफ द कोन बना रहा है. फिर देख लीजिए, द earlier radius is now forming the slant height for the cone, so which is 30. What will happen? This 30 and 30 is going to cancel from either hand side, so 130 will cancel out, pi and pi is obviously going to cancel out. So what I am going to do now, capital R, that means the radius of the cone. याद रखना, बाएं हाथ में क्या रख रहा हूँ? सर्कुलर शीट से जो हटा दिया है, अब ये सेक्टर बन गया, उसका एरिया इतना था, और ये कोन का क्या बनाता है मेरे बच्चे? ये कोन का लेटरल सरफेस एरिया बनाता है, जो पाई आर एल होता है. और एल क्या आई हमारा? 30 आई. जो पहले रेडियस था वो स्लांट हाइट का काम कर रहा है. सर्कुलर शीट का रेडियस कोन के स्लांट हाइट का काम कर रहा है. तो आर की वैल्यू हमारी आ गई 27. राइट, आर की वैल्यू अगर हमारी यहाँ पे 27 आई, लेट मी ड्रॉ अ cone here. So this is a cone. The value of R is coming out to be 27. This value is obviously equal to 27. Slant height is already equal to 30. Slant height for the cone, which is in yellow color, so I will use the same color code here, 30. अब मेरे बच्चे यहाँ से हम हाइट का वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं. ये हाइट मान लेता हूँ वाइट कलर में. देखो, रेडियस ऑफ द कोन हमने अभी कैलकुलेट करा, कितना आया? 27. स्लांट हाइट हमारी कितनी थी? 30. और अब हाइट आ जाएगी मेरे बच्चे पाइथागोरस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, विच इज़ 30 स्क्वायर माइनस 27 स्क्वायर रूट ओवर डैट. दिस वैल्यू विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 13.076. आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जो भी ये आता है. सो ये हमारा हाइट आ गया है. अब हमें हाइट आ गया है. व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट? रेडियस हमें ऑलरेडी पता है, कौन की 27 है, और हाइट हमें यहाँ से मिल जाएगी r/h, विच इज़ 2.064. मेरे बच्चे रेडियस कौन की कितनी है? 27. h हमारा यहाँ से पाइथागोरस से आ गया, तो r/h हमारा 2.064 आ जाएगा. इसको कहते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप. क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल आंसर टाइप. तो ये जो क्वेश्चन है, इसमें हमें आंसर टाइप करना होता है वर्चुअल कीबोर्ड से. वी नीड टू एंटर द आंसर, राइट. तो ये आंसर हमें टाइप करना होता है, एंड रेंज ऑफ द आंसर इज एक्सेप्टेबल. द रेंज ऑफ द आंसर इज एक्सेप्टेबल, सो वी हैव फाइंड आउट दिस. अब एक चीज़ और है, जो हमारा MCQ होता है, जिसमें सिंगल आंसर करेक्ट होता है, जो भी मार्क्स उस क्वेश्चन को अलॉट होंगे, उसका 1/3 उसका नेगेटिव मार्किंग होता है. राइट, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो -2/3 हो जाएगा इफ़ यू सॉल्व इट रॉन्ग. जो इससे हमने पहले करा, जिसमें मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इन द क्वेश्चन वेयर मल्टीपल आंसर्स कैन बी करेक्ट, नो नेगेटिव मार्किंग. हेयर एज वेल, NAT टाइप, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. इसमें वैल्यू आपको कीबोर्ड से, वर्चुअल कीबोर्ड से, यू नीड टू टाइप द वैल्यू. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर दिस टाइप ऑफ questions. I hope this point is absolutely clear. Once again, quickly, if we see, this is the circular sheet, 10% taken out, remaining area is on the left hand side, forming the curved surface area, the lateral surface area of the cone, pi r l. और L क्या आई? जो सर्कुलर शीट का रेडियस था 30, अब वो हमारा कोन के लिए स्लांट हाइट का काम कर रहा है. L is equal to 30. Pi r l is the lateral surface area. So it is not more than standard 10th elementary geometry, but the thing is that good question as such, and deal with lot of such questions in the class as well, where I explain it through various models. Now let's move ahead and let's see. This we have already done, so I hope the point is absolutely clear. Once we have evaluated R, and then height can be evaluated, and R/h can be simply evaluated. Point is made. Good. Let's
move further. What are important topics? I will say you leave nothing unturned. You study everything. The way the cutoffs have skyrocketed, we cannot leave anything to chance. But still, I will tell what are the important topics from the topics from where the questions have been asked, because all the four, numerical computation, numerical reasoning, numerical estimation and data interpretation, everything had remained intact. The syllabus has exactly remained intact except very few elementary simple problems of what will be the fifth figure based upon their orientation and changing in the space. The orientation will be changing in the space. What will be the fifth figure? Those type of questions have been introduced, right? Anyhow, let's see here. Number system is a vast topic, from HCF LCM to factors, factorial, base system, and everything else. This is important. Percentage, fairly important, and it will find application in profit and loss as well. Ratio mixtures, right? And the manifestation of the ratio will be time, speed and distance, fairly important. Time and work, quite important. Set theory, every year at least one of the branch, sometime in two branches, there is a question from set theory. Permutation and combination, the question have been not so, permutation and combination, the question have been not that frequent, but the questions are there. Probability and elementary statistics, right? So these areas are important. And then the very important area is algebra and geometry, and there have been relatively simple and easier questions from algebra. As such, the questions have been on logarithms, maxima, minima, questions have been on APGP, and questions have been on graphs and series, and questions, most of these questions can be either done by options, as I've shown you in one of the question. Data interpretation. Now see, I will explain you three integral part of your reasoning and aptitude. One thing is the aptitude part of it. Number two is data interpretation, and number three is reasoning. So these three parts will make the complete reasoning and aptitude. And what we need to make sure is we need not to go with preconceived mindset, some prejudices in our mind that questions will be from this area or that area. Sometimes they have surprised, the element of the surprise have been high. Few times there have been more questions from data interpretation, few times there have been questions from aptitude only, few times there have been a mix of these three areas, or some area can outshine the other area. तो आपको ये तीनों इंटीग्रल पार्ट को प्रिपेयर करने की जरूरत है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तीन पार्ट होते हैं. अच्छा, क्यूब एंड डायरेक्शन. This direction can be also a area of special regarding the spatial aptitude, right? And then the new part of the syllabus, which will be relatively simpler questions, which will be also dealing in the class as well. Else everything had almost remain unchanged. There are a couple of other topics like SICI and calendar. Calendar past 11 years there have been only one question. SICI there have been only 4 questions in past 11 years. So these are less important topics. But I'm saying you need to solve each and every topic, right? Don't go by chances, because this is your first time the question on calendar have been there. One more thing you can mention here, series also, which will be fundamentally covered in algebra. So these are slightly more important topics than others. So we need to make sure that we need to go through the complete scheme of thing. Do not leave anything onto chance. तो आप पूरा syllabus अच्छे से करके जाएंगे. Let's move ahead, and because it is an opportunity that I'm interacting with you, तो मैं इस opportunity को थोड़ा सा इंजीनियरिंग सर्विसेज के बारे में भी यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत डिफरेंट सेट नहीं होने वाला है जो लोग गेट लिखेंगे और जो इंजीनियरिंग सर्विसेज लिखेंगे, एक्सेप्ट द कंप्यूटर साइंस ब्रांच, राइट, फॉर विच देयर इज नो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम. सो इंजीनियरिंग सर्विसेज में
क्या वेटेज है? अगेन राइटिंग क्वेश्चन एंड मेकिंग इट वेरी टीडियस एंड कम्बरसम, मैं उसे फिर से सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 200 में से रफली 20 मार्क्स, क्योंकि 22 का भी आया है, 28 का भी आया है और 16 मार्क्स का भी आया है। सो आप उस सारी बात को छोड़ के बेसिक फंडामेंटल बना लीजिए, रफली 20 मार्क्स ऑन 200 विच इज अगेन 10%। तो गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज में वेटेज क्या है? रफली 10%, राइट। अगली बात, what is the difference in the syllabus? I have already written no major difference, almost 95 to 100% same. They are almost virtually they are same. There is no major difference as such. But I would like to highlight here, GATE questions are more tricky and on the moderate side of the difficulty as compared to engineering services. Engineering services, barring only few questions, कुछ ही क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऐसे आए हैं जो कि ट्रिकी हैं, टफ है। अदरवाइज as per my perception, the GATE questions are definitely moderate and on the higher side of the difficulty as compared to engineering services. एक बात और यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के प्री में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हुए हैं जो कि उन्होंने गेट से एग्जैक्टली सेम डेटा के साथ कॉपी करा है विद अ माइनर वेरिएशन, इवन दे हैव नॉट बॉदर्ड टू चेंज द डेटा। तो जो लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज एस्पायरेंट है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरूर से गेट क्वेश्चन को करें। 2010, 11 और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्टली इंजीनियरिंग सर्विसेज में देखे गए। सो आई विल से इन दिस वे, गेट will become the main set and engineering services will occupy a subset of it. So kindly make sure those, this is worth mentioning here. एक बार बात हो ही रही है तो मैं आपको जरूर से बता दूं कि आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एस्पायरेंट हैं उनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली बोलूँगा कि आप गेट के तमाम क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन कॉपी हुए हैं, राइट। इन शॉर्ट, and they are except easy barring a few question as compared to GATE. ESC question in aptitude I will rate it as on the simpler side. Let's move ahead. Now obviously what needs to be referred, कहाँ से हम तैयारी करें? सो जो मेडिजी के स्टूडेंट है वो मेडिजी की बुक्स को फॉलो करेंगे और जो मेडिजी नॉन मेडिजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। पहली चीज़, Medici workbook is must for Medici student. This apart from the notes which are the class notes, a serious aspirant should definitely take it as a fundamental thing, the class note, and then he should directly move on to workbook which will have chapters and the practice question on each of these chapters. So Medici workbook after class notes, this will be the first thing that needs to be solved completely. GATE and ESC previous year papers definitely, and I will say GATE questions are good questions. Some of the questions have been on the moderate side of the difficulty, and these questions are the questions that are going to decide the merit, because easy question everybody will be solving, and if by chance any particular question is exceptionally difficult, then it have to be left by the most of the students. So moderate questions decide the merit. It cannot happen you will solve only easy question and you will become the topper. No, it cannot happen. You need to enter into moderate questions as well. So please make sure you solve each and every GATE question twice, right? These are available from any open source. Medici students को तो ये पूरा publish होके मिलता है. बाकी student these are GATE question and ESC papers are easily available from open source. And another thing is, this is also easily available from any open source internet or anywhere else. CSAT previous year papers. CSAT is conducted by UPSC Civil Services Aptitude Test. So इसके भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी, राइट। और मेडिजी थ्योरी बुक, और दोज हु आर नॉन मेडिजी स्टूडेंट दे कैन फॉलो एनी सिंपलर बुक, any aptitude book for that matter, which will have all these syllabus points which I have already mentioned. Any other general aptitude book. You need not to go for exceptionally tougher books which are meant for especially exam like CAT only. I've trained students for CAT for IIMs for 10 years, and the level of the difficulty have been very high.
as compared to GATE. But GATE had also borrowed very few simpler questions from CAT from 2001, 2002, 99, 2000. There have been relatively very simple questions from the CAT which have been borrowed by the GATE as well. But आपके प्राइमरी रिसोर्स रहेगा, नंबर 1 आपका रहेगा वर्कबुक, राइट. Number 2, GATE and ESC previous year question, CSAT question conducted by UPSC. These are open source. Open source, you can easily get it from any website or anywhere, or you can get it from Made Easy. Previous year question will be a very good collection which will be error free and a very good publication, or any other source you want. Now, Made Easy theory book. If you are finding problem while attempting these questions, then you need to visit Made Easy theory book, or for that matter any other theory book, but make sure that each of these areas which I have told you or which are given in the index of our workbook should have been covered there. So these are resources for the reference. Let's move ahead. So I hope there is this point is also absolutely very clear. Now yes, how it need to be done. Up till now paper pattern is clear, marks scheme is very clear, marks allocation is very clear, important topics are obviously clear, type of question we have seen is also very clear. What need to be done? This is the last part of my slides with you. So kindly bear with me for another couple of more minutes, and what I'm going to tell you here is focused preparation is very, very important. Not like randomly picking questions from here and there and erroneous questions from here and there and over the internet, and then irrelevant questions which cannot appear in an exam like GATE. These things are not going to work. Focused preparation is really required, and it is the power of focus only that yield desired result. Focus होना बहुत ही ज़रूरी है. ये in general competitive in general लाइफ के लिए बोलें तो फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इन पर्टिकुलरली बोलें फोकस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ टाइम एनालिसिस, बिकॉज any competitive exam, the scarcest of all resource, I will be often using it, scarcest of all resources time. Time एक बेहद important resource है किसी भी aspirant के लिए जो किसी serious exam को aspire कर रहा है, उसके लिए बहुत important resource है time. तो आप क्वेश्चन में कितना टाइम ले रहे हैं सॉल्व करने में, और कितने एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट क्या है उससे मैच करके, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज टाइम लेफ्ट फॉर गेट एग्जाम is now significantly on the word that it is very much manageable, but after 2-3 months if we speak about and we start preparing, it will be very less. So time required for solving the question and time analysis with respect to your preparation is a very very important aspect. Concept clarity, pay attention to the concept, not to only to the formulas, not don't try to mug up the things, because it's an exam which is formed by IISc and IIT, and it can throw surprises. If the concept will not be clear, you can make a fumble here or there. बहुत important है कि आप concept पे ध्यान दें. अब मैं एक बहुत important aspect पे आ जाता हूँ, mistake का correction. Broadly, any student writing an exam will fundamentally find two type of mistakes. One is the conceptual mistake and the other is calculation mistake. Now if it's a conceptual mistake, then you need to go back and study the concepts again for that particular topic, and you need to cover it thoroughly, right? तो अगर कंसेप्चुअल मिस्टेक हो रही है, वापस किताब में उस चैप्टर को रेफर करिए और उसे अच्छे से क्लियर करिए. दूसरी मिस्टेक है कैलकुलेशन मिस्टेक, जो बिल्कुल हो सकती है, एप्टीट्यूड में हो सकती है, टेक्निकल में भी हो सकती है. तो इस चीज़ के लिए आपको test series will be a tool where you have to judge yourself, and Made Easy has a vast research and development team which forms test due diligence is done, and there are our R&D members, they sit for the test themselves and within the stipulated time, and all these things are carried out in a very professional manner, or you can refer to any test series.
So mistake correction will happen whether it is conceptual or whether it is calculation will happen through taking test frequently, right? Comprehensive coverage. Do not leave anything to chance, right? Because the way the cutoffs are going high, and if you are really a serious aspirant who want to be among the toppers, so you need to do a comprehensive coverage of the syllabus. Don't look for shortcuts here and there, right? Like covering a part of syllabus and then not leaving aside the few things. So comprehensive coverage of the subject needs to be done. और ये एक बहुत important बात है, analytic और logical thought process को develop करना है. बिल्कुल चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, मगअप नहीं करना है. थॉट प्रोसेस हैव टू बी जनरेटेड. मैं कई बार ये बात करूँगा कि आप एक पुरानी कहावत है कि आप व्यक्ति को मछली दीजिए तो आपको हर बार उसे मछली पकड़ के देनी पड़ेगी. सो रादर देन डूइंग ऑल दिस थिंग, द वे वी ट्राई टू डू इट इज़ यू टीच हिम द आर्ट ऑफ फिशिंग, राइट? तो आपको भी ये जो स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उस आर्ट को, सवाल को कैसे पकड़ना है, उसमें लॉजिक और एनालिटिक जो इन्वॉल्व है. एनी गुड पेपर, आप कोई भी पेपर ले लीजिए, चाहे वो गेट हो, चाहे वो यूपीएससी का कोई भी पेपर हो, या वो CAT for IIMS हो, or be it IITJEE हो, any exam will look for surely the most important quality. Analytic and the logical bent of mind is essentially a very, very important characteristic which is looked in an aspirant by any of the exams, across the exams. So make sure you need to develop it. So you need to develop the art of problem solving, art of fishing, rather than cramming the formula one by one and catching one fish. No, you will learn to need not to be dependent upon others for it. You need to develop an art of problem solving, right? And practice is going to be of immense help in this. So this is how this exam can be aced. And please make sure रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एक बहुत ही हाई स्कोरिंग एरिया है और इसमें मिस्टेक के कोई चांसेस नहीं रखने हैं. पूरा प्रयास करेंगे कि आप इसमें, अगर ये 9 मार्क्स का आता है, 10 मार्क्स का आता है, 12 का आता है, जितने भी मार्क्स का आता है, देखो भाई मैं एंड भी इसी चीज़ से करूँगा. रीजनिंग एप्टीट्यूड प्लस इंग्लिश बोथ आर फॉर 15 marks. If reasoning aptitude is 9, English will be 6. If reasoning aptitude is 13, then English will be 2. So this complete set is for 15 marks. I've dealt with reasoning and aptitude part of it. Some other expert faculty will be dealing with the English part of it. तो आप बहुत अच्छे से इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए कि आपको पूरा इस सेक्शन में, रीजनिंग और एप्टीट्यूड में, क्योंकि एक नहीं, several hundred of students they message every year that they have got complete marks, and it is very much feasible because the course is limited and the questions are also on the moderate side of the difficulty. And third important point, the questions are relatively less time consuming, so it's a high dividend area with respect to time as well and with respect to weightage as well. So please make sure that you score complete marks in this. Those who are classroom students, they will always keep on getting inputs from our side. Those who are non-classroom students, please make sure you follow these, and surely each one of you has ability that definitely you will be able to score complete marks without any minor mistake here or there, right? And I, on behalf of entire MadeEasy team, we are working hard for you people, and will make sure that we keep on providing valuable information, videos, and will try to cover everything. Thank you so much for your valuable time in viewing this presentation. हम लोग अब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ. मेरा नाम डॉक्टर पुनीत शर्मा है. मैंने मैथमेटिक्स में PhD किया हुआ है और मैं आपके MadeEasy में मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड की फुल टाइम फैकल्टी हूँ. वैसे ओवरऑल मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस, जो गेट एक्सक्लूसिव टीचिंग एक्सपीरियंस है, वो 8 ईयर्स का है. और वैसे तो मेरा 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, लेकिन गेट एक्सक्लूसिव वर्ड मैंने लिया, मतलब मैं पिछले 8 सालों से केवल गेट के लिए ही पढ़ा रहा हूँ.
ठीक है। अब इतने ड्यूरेशन में जो भी मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है सब्जेक्ट को लेकर के, उससे रिलेटेड जो एनालिसिस आपके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ जो मैंने देखा है, आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो वेटेज होता है ना, वो मैं आपका 5 साल का कंपैरिजन मैंने यहाँ पहले से करके रखा हुआ है। ये वाला कंपैरिजन ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए है। देखिए ये लिखा है मैकेनिकल ब्रांच में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 5 ईयर्स का ये वेटेज है, मैथ पोर्शन वाला। आप इसमें गौर से देख सकते हैं कि ओवरऑल लगभग देखिए कभी 13 मार्क्स की मैथ हुआ। एक्चुअली यहाँ से देखें, ये 1 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 4 क्वेश्चन 2016 में पूछे गए। तो ओवरऑल आपकी 13 मार्क्स की मैथमेटिक्स है। कभी देखो 15 आई, फिर 15 मार्क्स आई, कभी 14 आ गई, इवन अभी 2020 में तो 16 मार्क्स की आ गई। ऐसा कैसे हो सकता है कि 16 मार्क्स की, जब 15 मार्क्स ऑफिशियल अलॉटमेंट है तो 16 मार्क्स की क्यों है? एक्चुअल में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन एप्टीट्यूड में जो पूछा था वो मैथ्स बेस्ड पर ही था, वो मतलब मैथमेटिक्स की नॉलेज की बेसिस पर ही उसे निकाला जा सकता था। तो उस बेसिस पे हम ये 16 मार्क्स यहाँ लिखे हैं। और आप यहाँ सेट बी में भी देख सकते हैं, देखिए 16 मार्क्स, 13 मार्क्स, 15, 14, 12। तो ओवरऑल जो रफली एक वेटेज आपको नजर आ रहा है वो लगभग 14 to 15 मार्क्स है। 14 मार्क्स की तो गारंटी ले सकते हैं कि 14 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा आपके यहाँ। तो ये इवन आपको बता दें, ये जो 2016 है इसमें एक सेट सी भी था। यहाँ मैंने सेट बी तक का कंपैरिजन किया, यहाँ एक पर्टिकुलर ईयर में सेट सी था जो यहाँ आगे नहीं है, उसमें भी 15 मार्क्स की मैथमेटिक्स की। आप चाहें तो देख सकते हैं, उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं गूगल से। अच्छा, वेटेज तो पता चल गया। दूसरी चीज़ आती है सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस जो 2021 का जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, सिलेबस में मैं शॉर्ट में उनके नाम लिख रहा हूँ उन चैप्टर्स के। वो क्या है? पहला है लीनियर अलजेब्रा, दूसरा टॉपिक है कैलकुलस, थर्ड वन इज वेक्टर कैलकुलस, फिर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, उसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर है न्यूमेरिकल टेक्निक्स, आफ्टर दैट लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। आप वीडियो में फिर से पॉज करके सुन लीजिएगा ये क्या बोला गया। देखो, फर्स्ट टॉपिक लीनियर अलजेब्रा ऑल्सो नोन एज मैट्रिसेस, अनदर वन इज कैलकुलस, फिर है वेक्टर कैलकुलस। बहुत सी बुक्स कैलकुलस को वेक्टर कैलकुलस को कैलकुलस के अंदर ही रख देती है। मेरे हिसाब से ये दोनों डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इसमें वेक्टर से रिलेटेड बातें होंगी और ये तो सिंपल कैलकुलस है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। फिर ये कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, मैकेनिकल ब्रांच में क्वेश्चन 100% आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल टेक्निक, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। ओवरऑल ये 9 टॉपिक्स हो गए रफली अगर देखा जाए तो। अच्छा, अब लास्ट ईयर मतलब 2020 तक जो सिलेबस था और 2021 में जो सिलेबस है, क्या उसमें कोई चेंजेस हैं? मैकेनिकल ब्रांच के लिए केवल यही एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कोई भी टॉपिक ऐड नहीं हुआ और ना ही कोई टॉपिक रिमूव हुआ है। नो एडिशन ऑफ एनी टॉपिक, नो रिमूवल ऑफ एनी टॉपिक। मतलब ना कोई एडिशन है ना कोई रिमूवल है, जो सिलेबस पहले था वही सिलेबस अब भी है। तो सिलेबस में कोई डिफरेंस तो है नहीं। तो ये एक चीज़ आपने वेटेज देख लिया, दूसरा आपने सिलेबस देख लिया। अब इसमें जो मेनली देखना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब इन टॉपिक्स के अंदर जो सब हेडिंग्स हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कौन से हैं जो एग्जाम वाली रात में आपको रिवाइज करने हैं, वो मैं आपको रफली जल्दी जल्दी बताता हूँ। देखिएगा, जैसे कि ये लीनियर अलजेब्रा है, लीनियर अलजेब्रा में रैंक होता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होता है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर होता है, होमोजेनियस सिस्टम, नॉन होमोजेनियस सिस्टम, कैले हैमिल्टन थ्योरम, एलियो डिकम्पोजिशन, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। आपको कौन से पढ़ने हैं? हम क्लास में तो सब पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम वाली रात में अगर आपको रिवीजन करना हो तो देखो, एक तो जनरल प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन है, उसको तो रिवाइज करने की जरूरत भी नहीं होती, जिसमें आपको जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स या सिमेट्रिक मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट वगैरह की बातें होती है। जो आपको रिवीजन करना है वो क्या है? एक तो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिवीजन करना है, मैं यहाँ चाहे तो लिख देता हूँ, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस रिवीजन करना है, और दूसरा आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, ये रिवाइज करना है आपको। यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन से क्वेश्चन आ जाएगा। अच्छा, अब दूसरा ये आते हैं कैलकुलस पे। कैलकुलस में भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लेकिन पहला चैप्टर जो होता है ना, लिमिट, क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन वहाँ से आने के चांस होते हैं लिमिट से, तो यहाँ हमने लिख दिया लिमिट। ठीक, अच्छा, दूसरा फिर होता है मीन वैल्यू थ्योरम्स। मीन वैल्यू थ्योरम्स में भी आपके यहाँ रोल्स थ्योरम, लैग्रेंजेस थ्योरम और बहुत सारी थ्योरम्स हैं। तो ये जैसे कोई दूसरी ब्रांच हो, जैसे सीएस ब्रांच है तो उसमें हम खाली लैग्रेंजेस थ्योरम कहते हैं। यहाँ आप सारी थ्योरम पढ़ लीजिए, कोई भी आ सकती है, लेकिन आपको सर एग्जाम वाली रात के हिसाब से क्या किया जाए, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एक तो लिमिट आप देख लीजिए, दूसरा आप पार्शियल डेरिवेटिव देख लीजिए,
तीसरा आप मैक्सिमा मिनिमा देख लीजिए, मैक्सिमा मिनिमा ये आने के चांस पूरे होते हैं। और मैक्सिमा मिनिमा के बाद जो टॉपिक आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में एक तो डेफिनेट इंटीग्रेशन और दूसरा डबल इंटीग्रेशन। देखो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन जो क्लास 12 में पढ़ते थे, और डबल इंटीग्रेशन जिसमें आप एरिया वगैरह निकालते हैं। तो अगर ये टॉपिक्स आप रिवाइज कर लेंगे, मैक्सिमा मिनिमा में आपको सिंगल वेरिएबल और डबल वेरिएबल दोनों के रिवाइज करने हैं। इंटीग्रेशन में आपको डेफिनेट भी देखना है और डबल इंटीग्रेशन भी देखना है, इवन उसमें ट्रिपल इंटीग्रेशन भी हो सकता है क्योंकि वहां से वॉल्यूम कैलकुलेट होगा। टॉपिक्स और भी बहुत सारे हैं पर ये वाले आप रिवाइज कर लीजिएगा। अगला देखिए वेक्टर कैलकुलस में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैकेनिकल ब्रांच के लिए, क्योंकि इसमें ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल 100% क्वेश्चन आता है। और फिर इन्हीं का यूज करके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम यूज की जाती हैं, उससे भी क्वेश्चन आता है। लेकिन आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस क्वेश्चन जरूर आ जाएगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या फिर कर्ल से। अच्छा, दूसरा है गॉस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम सब नहीं, आप केवल गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कर लीजिए और लाइन इंटीग्रल को समझ लीजिए। एक्चुअल में ग्रीन्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम लाइन इंटीग्रल ही सॉल्व करके देती हैं, लेकिन कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ग्रीन्स थ्योरम या स्टोक्स थ्योरम से नहीं हो सकते, तो वहां लाइन इंटीग्रल का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना होता है। इसलिए हमने कहा लाइन इंटीग्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको थ्योरम पढ़नी है तो फिर वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलो ये तो वेक्टर कैलकुलस हो गया। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में बिना सोचे आप कॉची रीमा इक्वेशंस रिवाइज कर लीजिएगा। मतलब ये तो क्वेश्चन आने के पूरे चांस होते हैं जिसके बेसिस पे आप एनालिटिक फंक्शन का स्टडी करते हैं, तो कॉची रीमा इक्वेशन कर लेंगे। और दूसरी चीज जो आपको करनी है वो कॉची रेसिड्यू थ्योरम। बस ये दो चीजें रिवाइज कर लेंगे, 90% श्योरिटी है कि क्वेश्चन आपका बन जाएगा। वहां पे बन क्या जाएगा, मतलब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बना पाते हैं कि नहीं वो इस पर डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है। केवल 2 टॉपिक बताए हैं इसमें, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है बहुत सारे, आप इन दोनों को रिवाइज करिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में आप कुछ मत करिए, एक तो CF प्लस PI मेथड पढ़ लीजिए, जो सभी जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में यूज होता है। और अगर आपको फास्ट लग रहा हो तो पॉज करके सुन लीजिएगा फिर से मैंने क्या बोला है। CF प्लस PI मेथड देख लीजिए, और दूसरा क्लास 12th वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें वेरिएबल सेपरेबल मेथड और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। केवल बस इतना ही करना है आपको, मतलब वेरिएबल सेपरेबल पे प्रैक्टिस कर लीजिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रैक्टिस कर लीजिए जिसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप कैलकुलेट करते थे, और प्लस CF प्लस PI मेथड पे चले जाइए, आपका काम बन जाएगा। ठीक, अब आप न्यूमेरिकल टेक्निक पे आ जाइए। न्यूमेरिकल टेक्निक में आपको केवल न्यूटन रैप्सन मेथड पढ़ना है, ट्रेपीजॉइडल रूल पढ़ना है और सिम्पसन्स रूल पढ़ना है। ये 3, मतलब देखो ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यही 3 पढ़ने हैं। एग्जाम वाली रात में अगर टाइम कम है तो आपको यही रिवाइज करने हैं, बाकी का आप रिवीजन छोड़ भी सकते हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड, ट्रेपीजॉइडल रूल और सिम्पसन्स रूल। फिर आता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अच्छा एक बात बताएं आपको, 2020 तक कई सारी ब्रांचेस में लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछा जाता था। 2021 एक ऐसा ईयर है जो अभी आने वाला है, उसमें केवल मैकेनिकल ब्रांच में ही ये टॉपिक अपने को बचा पाया है, बाकी सारी ब्रांचों से ऑफिशियली हटा दिया गया है। हटा दिया गया मतलब सिलेबस में लिख के नहीं आया। हालांकि EC और EE ब्रांच वाले बच्चे तो इसके बगैर सोच ही नहीं सकते सिग्नल सिस्टम को कि उनको कैसे लगाना है, तो हो सकता है वो क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम में पूछ लिया जाए। मैथमेटिक्स में लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफिशियली किसी भी ब्रांच में लिख के नहीं आया, लेकिन मैकेनिकल एक ऐसी ब्रांच है जिसमें अभी भी वो लिखा हुआ है। तो आज की डेट में आपको मैं बता दे रहा हूं, लास्ट ईयर तक जो सबसे ज्यादा सिलेबस होता था वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में होता था। इस साल से मैथ्स का अगर कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा सिलेबस है तो मैकेनिकल ब्रांच का है। अब आप इसे अच्छी किस्मत मानिए या बुरी, ये आप जानिए। अच्छा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में लेकिन आप पढ़ोगे क्या, कुछ नहीं, बस बेसिक प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस, और कुछ मत पढ़िएगा। बेसिक प्रॉपर्टीज मतलब बेसिक फॉर्मूले रिवाइज कर लीजिएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन आपका क्रैक हो जाएगा। अगला आता है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज में आखिर हम क्या पढ़ के जाएं। फोरियर सीरीज में देखो चेंज ऑफ इंटरवल का क्वेश्चन है, -L to L वाला इंटरवल का क्वेश्चन है, मेन डेफिनेशन पर बेस्ड है। आपको ये भी नहीं पढ़ना है, आपको पढ़ना है आइलर रिजल्ट्स। फोरियर सीरीज में आइलर रिजल्ट्स पर बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो -π to π के इंटरवल में होते हैं। आप बुक में देख लीजिएगा, वो जो -π से π के इंटरवल में फोरियर सीरीज डिफाइन होंगी वही आपको पढ़ना है, बस वहीं से क्वेश्चन बनता है फोरियर सीरीज के लिए। और फिर आता है प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स। तो देखो ये तो मैं हमेशा कहता हूं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो आप छोड़ नहीं सकते, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम भी इंक्लूड हो जाती है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर दूसरा जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है उसमें आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इतने सारे हैं ना। लेकिन मैकेनिकल के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा मैंने शॉर्टकट में लिखा है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली में
यही दोनों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि आपके यहाँ एक सिलेबस ऑपरेशन रिसर्च एक पेपर होता है, उसमें टॉपिक होता है क्वीन थ्योरी। क्वीन थ्योरी इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें अराइवल पॉइजन से देखा जाता है और वेटिंग टाइम एक्सपोनेंशियल से देखा जाता है, तो ये वहाँ पर भी आप यूज़ करते हैं, इसलिए ये पॉइजन और एक्सपोनेंशियल आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और नो डाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो यूनिवर्सली इंपॉर्टेंट टॉपिक होता ही है, इसलिए उसको आप मत छोड़िएगा। तो आप मैथमेटिक्स में कहने के इतने सारे टॉपिक है, लेकिन एग्जाम वाली रात में अगर इनको आप रिवाइज कर ले गए तो आपके ये जो 15 मार्क्स या 14 मार्क्स हैं उनमें से लगभग 12 मार्क्स तक का तो क्वेश्चन पेपर यहीं से बनने के चांस है, ऐसा मुझे अपने एक्सपीरियंस से लगता है। तो अभी आपने क्या डिस्कशन कर लिया, वेटेज देख लिया, सिलेबस देख लिया है, सिलेबस रफली क्या सिलेबस है और उसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो जान लिए। हमें लगता है सबसे मेन बात आपको यही समझ में आई होगी, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि टॉपिक कम हो गए, अब यही पढ़ेंगे। बहुत से बच्चे जानते हैं क्या करेंगे, अब वो डिटेल में पढ़ना ही बंद कर देंगे, इन्हीं को पढ़ना शुरू कर देंगे। बेटा ऐसा मत करना, ये एग्जाम से 2-4-10 दिन पहले के रिवीजन के लिए है, अभी के लिए नहीं है। अच्छा, अब अगले टॉपिक पे हम जाते हैं जिसमें हम देखेंगे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन क्या होगा। तो इस साल से तो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज हो रहा है, सिंगल चॉइस एमसीक्यू, मोर देन वन चॉइस जिसमें सही हो वो है एमएसक्यू, और फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है एनएटी। तो हम उनमें देखते हैं कि वो किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेके करेंगे। जैसे कि आपको पता चल गया गेट 2021 में 3 तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने हैं और वो तीनों के नाम क्या हैं, एमसीक्यू, एमएसक्यू और एनएटी, है ना। काफ़ी सारी जगहों पे आपको आइडिया लग गया होगा कि इन तीनों में होना क्या है। मल्टीपल सेलेक्ट है, ये सिंगल चॉइस आंसर होगा इसमें, मतलब ऑप्शंस 4 होंगे लेकिन सिंगल चॉइस सही होगा, या मोर देन वन चॉइसेस होंगी, और ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन, नेचर ऑफ क्वेश्चन आपको समझा देते हैं कि किस तरह का कॉन्सेप्ट और कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं एमसीक्यू का क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करता हूँ। हालांकि आप लोग को सबको वेटिंग होगा इस चीज़ का, लेकिन बताएंगे अभी। पहले मैं एमसीक्यू आपको बता दूँ एमसीक्यू का नेचर क्या होता है, जैसे कि पहले सालों में भी आपने देखा हुआ है। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, लिमिट, ये लिमिट का मैं कैलकुलस का क्वेश्चन ले रहा हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसके लिए आपसे पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शंस हैं A, B, C और D। जैसे एक ऑप्शन मैंने लिख दिया पाई, माइनस पाई, 1 और 0, ये 4 चॉइसेस हैं, इन्हीं में से कोई सिंगल चॉइस आपकी सही होनी है। ट्राई करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे किया जाए। देखिए सिंपल सी बात, लिमिट के कॉन्सेप्ट में अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो बाय यूजिंग द डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दिस एक्सप्रेशन कम्स इन 0/0 फॉर्म, and in 0/0 form it is known as indeterminate form. In order to solve indeterminate form we can use L'Hopital rule. तो आप यहाँ L'Hopital rule लगा के सॉल्व कर सकते हैं। L'Hopital rule होता क्या है, इन विच वी हैव टू डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर सेपरेटली। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या आएगी, जब आप इसमें L'Hopital रूल अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। एक्चुअल में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, और फिर 0 रखेंगे तो डिनोमिनेटर में 0, तो फिर 2 बार डिफरेंशिएट करके ये एक्स स्क्वायर से x खत्म हो जाएगा। तो वो ट्वाइस डिफरेंशिएशन करना भी कभी कभी ईजी नहीं होता, जैसे न्यूमरेटर का ट्वाइस डिफरेंशिएशन इतना ईजी नहीं होगा। हालांकि वो एक मेथड है, उसमें कोई इशू नहीं है। तो एक मेथड तो ये हो गया 0/0 की वजह से कि ये 0/0 फॉर्म है, तो आप कह देंगे कि हम इसको L'Hopital रूल से सॉल्व करेंगे। चलिए हमने मान लिया कि इससे तो क्वेश्चन हो जाएगा। कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, देखिएगा। कॉन्सेप्चुअली सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने जा रहा हूं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट अप्लाई करूंगा यहाँ। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से पहले देखिएगा, ये कॉस स्क्वायर एक्स को आप ऑब्जर्वेशन से बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो लिखा जा सकता है ना, ये तो नॉर्मल सी बात है, 9th क्लास में पढ़ते थे हम। तो जब मैं यहाँ लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ये एंगल हो गया डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। इसमें किसी को डाउट है, नहीं होना चाहिए। अब फिर से देखिए, साइन पाई माइनस थीटा, अगर आप इसे थीटा की तरह ट्रीट कर लें तो ये साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, तो वो साइन थीटा ही रह जाता है। तो ये बच गया आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन पाई ऑफ साइन स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हुआ आपको, सर इजी तो नहीं हुआ, पहले cos स्क्वायर एक्स था अब साइन स्क्वायर एक्स था आ गया, नहीं देखो इजी कैसे हुआ, यहाँ से ऑब्जर्वेशन मेथड लगेगा और ऑब्जर्वेशन मेथड से क्वेश्चन हो जाएगा। वो क्या होगा ऑब्जर्वेशन मेथड, देखिएगा। जैसे यहाँ लिख देते हैं लिमिट, यहाँ लिखा हुआ है साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स, हम बिल्कुल इसी चीज़ से, ये एंगल की तरह ट्रीट हो रहा है ना, साइन का एंगल ये है, तो हम इसी चीज़ से डिवाइड भी कर दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स, और ये है x टेंडिंग टू 0।
अब आपने अपने मन से पाई साइन स्क्वायर एक्स से डिवीजन कर दिया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लीकेशन भी कर दिया जाए। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0। देखो ये वाला एक्स स्क्वायर तो ये रहा, और ये साइन स्क्वायर एक्स यहाँ से बैलेंस हुआ। आपको सर ये पाई बैलेंस नहीं हुआ, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई पाई भी ऐसा लिख दीजिए। अब तो कोई इशू नहीं है, चेक करो। पाई साइन स्क्वायर एक्स इस पाई साइन स्क्वायर एक्स से कैंसिल आउट हुआ, और ये पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वही चीज बच गई जो पहले थी। तो केवल एक मैनिपुलेशन किया है। इस मैनिपुलेशन का एडवांटेज देखिए क्या है। आपने कहीं एक स्टैंडर्ड रिजल्ट सुना होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू 1 होती है। बेसिक रिजल्ट क्लास 11th में जो फर्स्ट रिजल्ट था वो यही था। इसमें देखिए ये जो x है और ये x है, ये एंगल का काम कर रहा है। उसी चीज से आपने डिवाइड किया और वही चीज टेंडिंग टू 0 है। अगर एंगल टेंडिंग टू 0 हो जाए तो आंसर 1 आता है। इस फॉर्मूले में वही चीज देखो यहाँ हो रही है। यहाँ पे एंगल है पाई साइन स्क्वायर एक्स, एंगल है पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो अब x टेंडिंग टू 0 पर ये साइन एक्स भी 0 होगा। ये ओवरऑल पूरा एक्सप्रेशन 0 की तरफ टेंड कर जाएगा। कहा था जब एंगल टेंडिंग टू 0 हो और डिनोमिनेटर में भी एंगल से डिवाइड हो तो इसको 1 लिखा जा सकता है। उस स्टैंडर्ड रिजल्ट से आपने इसे 1 मेंशन कर दिया। दूसरी चीज देखिए, इसका आंसर क्या हो सकता है। इसमें हम थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर इसमें नेक्स्ट स्टेप में इसको पावर में ले जा सकते थे। देखिए क्या हुआ, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, और अब ये क्या है आप जानते हैं, इसकी वैल्यू 1 और स्क्वायर इनटू पाई। ओवरऑल सोल्व करोगे तो देखो पाई आ गया। सिंगल चॉइस आंसर था, पाई था। हम मानते हैं कि ये एल ऑपिटल से हो जाएगा, लेकिन कभी कभी एल ऑपिटल रूल इतना इजी नहीं होता। इसलिए ये कॉन्सेप्चुअल मेथड को अगर आप फॉलो करेंगे तो जरा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ब्रेन ज़्यादा डेवलप होगा, और एग्जाम में भी अलग से किसी तरीके से सिली मिस्टेक होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये तो एक ट्रिक है और ये उसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूं कि एमसीक्यू आपको क्लियर हो गया कि कैसा है। पहले सालों में भी ऐसा ही होता रहा है। अब हम जा रहे हैं एमएसक्यू। एमएसक्यू मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन किस तरह का पूछा जा सकता है स्टूडेंट। ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आपके सामने पहले से लिख दिया है। अभी थोड़ी देर पहले एक कैलकुलस का क्वेश्चन कराया था जो एमसीक्यू टाइप का था। अब की बार मैंने एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ले लिया। थोड़ा प्रोबेबिलिटी को लोग टफ मानते हैं ना, ऐसे कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बहुत टफ होती है, तो मैंने इसलिए सोचा कि ये एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन बना दूं, वो भी प्रोबेबिलिटी से, जो टफेस्ट में भी टफ हो जाएंगी चीज़ें और आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए क्वेश्चन पहले से लिखा है, इसको समझिएगा क्या है। ये दिया हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स है 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये एक्स अपॉन वाई स्टैंड्स फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसको रीड कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, या सॉरी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स व्हेन y हैज ऑलरेडी अकर्ड, इट इज गिवन एज 1/2। सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ y व्हेन x हैज ऑलरेडी अकर्ड इज 2/5। उस सिचुएशन में कह रहे हैं इन सब की वैलिडिटी चेक कीजिए। तो इसका मतलब आपको 1/1 चेक करना है। जो जो सही आएंगे वो आपके टिक लगते जाएंगे। सिंगल चॉइस आएगा तो MCQ है, और अगर मोर देन 1 चॉइस आ गया तो MSQ है। ट्राई करते हैं, देखिए कैसे। जैसे आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन है x अपॉन वाई। आपने क्लास 12th में ऐसा सुना होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड y हैज ऑलरेडी अकर्ड का ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अच्छा, इसी तरीके से स्टैंडर्ड रिजल्ट आप इसमें x अपॉन y में भी तो लिख सकते हैं। जैसे ये ये तो x अपॉन y में लिखा ही है, तो हम y अपॉन x में लिख रहे हैं, तो y अपॉन x में ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x। ये सामने आपके मैंने 2 रिजल्ट लिख दिए। अब इन्फॉर्मेशंस रिप्लेस करते हैं जो जो गिवन है। पहली इन्फॉर्मेशन देखिए, x अपॉन y की प्रोबेबिलिटी 1/2 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब यहाँ पर आपके पास ना ये पता है, ना डिनोमिनेटर पता है, ना न्यूमरेटर पता है, तो इक्वेशन 1 लिख दिया जी। अब यहाँ देखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ y अपॉन x, यहाँ से इन्फॉर्मेशन है 2/5, और y इंटरसेक्शन x तो नहीं पता, ये निकाल लेंगे। y इंटरसेक्शन x अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ये लिखा हुआ है 1/3। बेटा अब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटरसेक्शन x निकल आ जाएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ y इंटरसेक्शन x मल्टीप्लाई करने के बाद निकलेगी 2/15। आप क्रॉस चेक कर लीजिए, 2/5 इंटू 1/3 गिव्स 2/15। तो y इंटरसेक्शन x की प्रोबेबिलिटी है 2/15। इन्होंने क्या दी हुई है 1/5। तो देखो ये तो चॉइस ही गलत है, ये तो गलत चॉइस हो गई, सामने आके आ गई। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं, इसी वैल्यू को जरा यहाँ रिप्लेस करते हैं इसमें। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y जो दी है आपको 2/15 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y। अब अगर इस जगह से क्रॉस चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ y यहाँ से क्रॉस चेक में क्या निकल के आ जाएगा, 2/15 से मल्टीप्लाई करें अगर तो होगा ये 4/15। कैसे होगा, देखिए इधर से मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर जाएगा, 4/15। देखो आंसर सही है।
ऑप्शन ए सही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आपके 4/15 मिल रही है। चलो ठीक है, एक हो गया। अब यहाँ यूनियन लिखा हुआ है, आप में से किसी को याद है यूनियन के लिए एडिशन थ्योरम लगती थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दिस इज नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो वही थ्योरम मैं आपके सामने लिख देता हूँ कि जैसे लिखा है एक्स यूनियन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, दिस वन इज नोन एज एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। आप करें क्या, सिंपल इसमें वैल्यूज रिप्लेस कीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ये लिखी हुई है 1/3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आपने अभी अभी निकाला 4/15 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, देखो ये भी निकल के रखा हुआ था 2/15। अब अगर आप इसे क्रॉस चेक करें, इसको सॉल्व करें तो ये कितना रहा, 5 + 4 9 2 7/15 7/15। हमें लगता है कि शायद ये आएगा। हाँ तो ठीक है, यूनियन की वैल्यू 7/15 आई, इन्होंने क्या दी हुई है 2/5, देखो गलत हो गया, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। तो अब आप एक बात नोटिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस बड़े होने जा रहे हैं, MSQ टाइप के क्वेश्चंस बड़े हो जाएंगे। इनका एडवांटेज क्या होगा, देखो सबसे अच्छा एडवांटेज तो यही है कि इसमें टाइम लगेगा, तो जो मेरिट बहुत ऊपर जाती थी वो उतनी ऊपर नहीं जाएगी। खैर वो अभी हम देख लेंगे फिर से। यहाँ पे एक चॉइस और बची, ये x डैश अपॉन वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश अपॉन वाई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x डैश इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट से लिख दिया है। अब x डैश इंटरसेक्शन y की वैल्यू आखिर निकलेगी कैसे, देखो वेन डायग्राम बना करके समझते हैं इस चीज को। ये है x और ये है y, दिस वन इज x एंड दिस वन इज y। बेटा x डैश जानते हैं, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x में x का कॉम्प्लीमेंट x के बाहर वाला पोर्शन, इस x के आउटसाइड में जो भी रीजन है दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x, और उसका इंटरसेक्शन लेना है y से। तो बताइए x के बाहर वाले रीजन का इंटरसेक्शन इस y से लेना है, तो क्या ऐसा कुछ बचेगा ये वाला। तो ये जो शेडेड पोर्शन है उसी चीज की प्रोबेबिलिटी यहाँ न्यूमरेटर में आपसे कैलकुलेट करने के लिए कही गई है। इसके लिए कोई फॉर्मूला हो सकता है, अगर आप लॉजिक लगाएंगे तो फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये पूरा सर्किल y को डिनोट कर रहा है, और ये वाली चीज जो है वो x इंटरसेक्शन y है। अगर y में से आप इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाएगा, तो वही हम लिखने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ y माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इंटरसेक्शन y अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक, ये फॉर्मूले से अकॉर्डिंगली आप इतना लिखते चले गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ y निकाल के रखी हुई थी आपने 4/15, तो 4/15 माइनस x इंटरसेक्शन y ये रहा 2/15 अपॉन 4/15, और ये जब सॉल्व करेंगे तो आपको 1/2 ही मिलेगा। तो देखिए मल्टीपल सेलेक्ट का ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, मतलब ऑप्शन ए सही था, ऑप्शन डी सही था। यही है MSQ, इसी में लगेगा टाइम। और अगर ये जाता तो उम्मीद है कि 2 मार्क्स में ही आएंगे, क्योंकि अच्छा खासा कैलकुलेशन इसमें हो रहा है ना, इस वजह से मतलब हमारा आइडिया है कि 2 मार्क्स में ही पूछे जाने हैं। हो सकता है 1 मार्क्स में भी पूछ ले, लेकिन इससे लेवल बढ़ जाएगा आपके पेपर का। अभी तक जो होता था ना कि मेरिट को किसी बच्चे के 88 मार्क्स आ रहे हैं, किसी के 93 मार्क्स आ रहे हैं, वो उसमें शायद ब्रेक लगे। आज से 10 साल पहले क्या होता था, 65 मार्क्स को या 60-65 मार्क्स को बहुत अच्छा माना जाता था गेट में। अब वही चीज़ है, 80 मार्क्स को 75 मार्क्स को अच्छा माना जाता है। तो ये जो 10-15 नंबर का जंप हुआ था, शायद ये जंप नीचे आ जाए, ये मेरा ऐसा सोचना है। एक और चीज़ बची, NAT टाइप क्वेश्चन क्या है। अब देखिए यहाँ NAT टाइप क्वेश्चन में क्या हो सकता है, एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको NAT का हम रख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो एक क्वेश्चन हमने कैलकुलस का किया, एक प्रोबेबिलिटी का कर लिया, अब एक लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ A 1 2 3 0 और 4 5 0 0 1, सिंपल एक मैट्रिक्स है, और कह रहे हैं देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स, और इसके आगे फिल इन द ब्लैंक्स लगाया हुआ है, मतलब ये डिटर्मिनेंट करना है। और आगे लिखा है टू डेसिमल प्लेसेस, मतलब अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपको इसकी वैल्यू निकाल के लानी है डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स की। सोचिए भाई क्या किया जा सकता है, NAT टाइप क्वेश्चन है, कैलकुलेशन की डिमांड होगी। देखिए वो कैलकुलेशन हमें करना है, या उसमें भी कोई कॉन्सेप्ट लगा के क्वेश्चन को जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत से स्टूडेंट क्या सोचेंगे कि इसमें डिटर्मिनेंट ऑफ A इनवर्स निकालना है, तो फर्स्ट ट्राई टू कैलकुलेट A इनवर्स एंड देन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट।
और ए इनवर्स के लिए भी आप एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। बेटा अगर आपने इसमें इनवर्स कैलकुलेट करना शुरू किया तो ये कम से कम 5 मिनट का क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब ये एमएसक्यू से भी ऊपर निकल जाएगा। तो फिर ये अप्रोच ठीक नहीं है। 3x3 मैट्रिक्स का इनवर्स क्लास 12 में याद कीजिए लेंदी अप्रोच होती थी, या हम लोग क्लास में इसका एक शॉर्टकट मेथड बताते हैं, पर वो भी टाइम लग जाएगा। इसको मुश्किल से 10 सेकंड्स के अंदर क्रैक किया जा सकता है और आंसर आपको मैच कर जाएगा। देखो कैसे होगा, नो नीड टू फाइंड इट्स इनवर्स, जस्ट यूज द प्रॉपर्टी। फर्स्ट इसको नोटिस कीजिए, ये एक आपको यूटीएम नजर आ रहा है। यूटीएम का मतलब अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो यूटीएम का मीनिंग क्या होता है, व्हेन ऑल द एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो, मैट्रिक्स इज नोन एज यूटीएम। डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो तो मैट्रिक्स यूटीएम होता है, तो ये यूटीएम है। अच्छा दूसरी चीज, इसका मैं आपसे डिटर्मिनेंट पूछ लूं, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ यूटीएम जस्ट मल्टीप्लाई द डायगोनल एलिमेंट्स, बस उसी से डिटर्मिनेंट आ जाता है। ये भी एक ट्रिक है, एक प्रॉपर्टी है जो आपको पता होनी चाहिए। तो आपने 1 × 4 × 1 किया, डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, और ये 4 आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए सामने है, आपको निकालना क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो इसके लिए देखो एक प्रॉपर्टी और अगर याद कीजिए तो ये होती है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं ये सब चीजें, ठीक। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को आप सिंपल 1/4 लिख देंगे, 0.25। देखिए इसलिए कह रहे थे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये भी एक फायदा है। आपको बता दें, आपको ये प्रॉपर्टी मैंने डायरेक्ट यूज की है, डायरेक्ट ही पूछी जाती है। 2019 में थी ये प्रॉपर्टी आई थी ट्रू एंड फॉल्स में, कि बताइए सही है कि गलत है। ऐसे कई बार ये पहले भी आई हुई प्रॉपर्टी है। तो एक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपके सामने और रख दिया। ये एनएटी टाइप क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के। तो आपको एमसीक्यू पता चला, एमएसक्यू पता चल गया और एनएटी भी पता चल गया है, ठीक। तो मुझे लगता है कि अब आपको पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस मैथमेटिक्स में कुछ आइडिया लग गया होगा। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड और थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक। Hi everyone, I'm Srinivas and I deal with English. I have been working in MadeEasy for the past 10 years. I have 26 years of experience in teaching English at different levels. I'm here to give you an insight into English part in GATE 2021. This is my personal profile, I've just spoken of it. Now have a glance at this slide that represents the syllabus. Verbal aptitude contains 3 major areas: grammar, vocabulary, and comprehension. In grammar, these are the areas that have been prescribed: tenses, articles, adjectives, prepositions, conjunctions, verb-noun agreement, and other. When we say verb and noun agreement, it is basically subject-verb agreement. When we say subject, it can be either noun or pronoun too. Very frequently tested, right? And we have something called parts of speech. When we say parts of speech, the questions are given like this. A word is given and you are asked to identify to which part of the speech the word belongs. If at all there is a word, that definitely belongs to one of the 8 parts of speech, either noun or adjective or verb or any one of them. We have 3 questions that have been directly asked in GATE examinations earlier based on this particular area, right? And we have something called vocabulary. Vocabulary is nothing but words. When I say words, it can be a synonym, antonym, acronym, paronym, any word. Generally, in vocabulary, we have questions on synonyms and antonyms. If the word gives a similar meaning, that's a synonym. If it gives opposite meaning, it's called antonym. And we have something called idioms. What is an idiomatic expression? It has a very lengthy definition, but simply speaking, it's nothing but a proverb. For example, we have an idiom called lion-hearted. Who is lion-hearted? Somebody who is brave, highly courageous. Opposite of which is chicken-hearted, which means timid. We have something called phrasal verbs. We have questions on phrasal verbs too. What is a phrasal verb? A simple verb followed by a preposition or an adverb is called a phrasal verb. There are some decent number of questions based on both idioms and phrasal verbs so far in GATE exam. Now, coming to this reading comprehension, what is this? The very word comprehension itself is the noun form of the verb comprehend, which is to understand.
You are given a passage and you have got to read it and understand the central theme of the passage, based on which you will have questions. And how is it different from the area called critical reasoning that has been given so far in GATE exam? There is hardly any difference. In comprehension, you have a reasonably lengthy passage which has got 5 questions beneath it, about 5 questions. And you are supposed to answer them. And in critical reasoning, we have a small passage beneath which there is only 1 question. You are asked to draw the inference of that passage. In critical reasoning, we need the knowledge of language, the ability to read and understand the language, coupled with logic. Same works for comprehension too. Right. We have another area called narrative sequencing. What is this? We have a passage that's been divided into some sentences, maybe 4, 5, 6, and the order of which is broken. They are shuffled. The order is mixed. So what you need to do is, you have to go through all the sentences, understand what the passage is all about, and then you have to rearrange them in such a manner that it becomes a meaningful passage with beautiful order. Yes, and we need to answer the questions based on the order of the passage. That's right. We have something called added topics and removed topics. To be precise, nothing is added, nothing is removed. Everything remains the same as far as verbal part is considered. My dear friends, all these areas that are mentioned this year have been tested in previous years too. So we don't have to discuss this. Coming to this, the analysis of weightage of marks for English. If you look at this, every year we have 1 or 2 questions that carry 2 marks. Now, 2020, 4 questions that carry 1 mark have been given and 1 question of 2 marks is given. That means 6 marks have been allocated for English in electronics in 2020. In one of the streams, recently 7 marks have been given. It means you can understand that the importance of English in GATE syllabus has been increasing. If every mark is important in a competitive examination to decide the rank, every subject is equally important. You don't have to take English easy, nor do you have to consider it tough. If you know the proper approach in preparation, you will definitely be able to score good number of marks in English. Right. Now, let's have a glance at the pattern of questions. Multiple choice questions, something that's known to all of us because it's been in existence for ages. And for every wrong answer, you will be penalized with 1/3 of negative marking. Example for this, I took this question from previous questions of GATE exam. Based on grammar, the passengers were angry, dash the airline staff about the delay. 4 options have been given and the answer is with. Why? Angry is an adjective that takes broadly 2 prepositions, with and at. We get angry with a person, at a thing. My brother is angry with me at my laziness. Me, I'm a person, so with. Laziness, that's a thing, a bad quality, at. The manager is angry with his subordinate, at his negligence. Subordinate person, negligence thing. So answer is this. This is common pattern. Now, this is the changed pattern, newly introduced. Multiple select questions, MSQ. Here, it's not enough to choose 1 option as your answer. You got to choose 2 or 3 or sometimes 1 or sometimes 4. Right? So there is a possibility for you to choose more than 1 option as your answer. That's how the pattern is given. Now, example for this MSQ. Which of the following options is or the closest in meaning of the word below? The given word is loquacious and you need to find out the synonym or synonyms of it. This should be ruled out because it is just the opposite of it, antonym.
Taciturn is the noun, the adjective of which is tacit. Tacit means unspoken. There is a tacit understanding between these two political parties. That means the understanding exists, but nobody knows. Openly, at least, it's not known. Taciturn is a person who is habitually silent. Loquacious is a person who is fond of speech, who speaks a lot. Talkative is the answer. And these two are opposite to each other. Now, so talkative is the answer. But only talkative is the answer? No. We have another option which also is correct. That is garrulous. Garrulous is just the synonym of loquacious. If somebody is garrulous, he is good at speech. He can mesmerize people with the ease in speech. So, the answer to this question, loquacious, is both garrulous and talkative. Circuitous is completely different word, that means indirect, roundabout. So, it is not relevant in this context. So, this is opposite word and these two are the same in meaning. So, these two answers. So, one question has two options as correct answers, right. Now, numerical answer type questions. When we say numerical, that means it is not verbal. So, it is not our business to discuss this. We can comfortably skip it. It is not applicable for verbal part. Yes. Now, important topics in the preparation of GATE English part. Grammar and vocabulary. In grammar, we have two areas that are frequently tested, prepositions and verb. To be precise and honest, it is truly difficult to decide which topic is important, which topic is not important, because the paper setter has the freedom to frame any question from any nook and corner of English language. But despite that, you can decide a particular point to be important based on its frequency of being tested. If a particular test point is tested repeatedly, either in one exam or several examinations, naturally that's considered to be important. That's why we have highest number of questions on an area called prepositions and verb in many exams, and GATE too. GATE is not an exception. Right. Coming to vocabulary part. We have areas like analogy, sentence completion, and synonyms and antonyms. We don't have to discuss this because this is pretty well known to all. And coming to the sentence completion, my dear friends, we have a sentence with a blank in it, beneath which there are 4 different options. Using one of them, which you consider the aptest, you have to fill in the blank of it. That's why it is called fill in the blank too. You are basically supposed to complete the sentence that's given incomplete, and very, very, very frequently tested area in GATE exam. And we have something called analogy. What is analogy? Analogy is nothing but similarity. We have a question pair in which 2 words given, beneath which we have 4 pairs of choices. What you need to do is, you have to first understand the relationship between the 2 words given in the question pair, and from among the options, choose one pair in which the same kind of relationship is being exhibited. Right. Yes. Before I conclude, I would like to say something to you, my dear friends. The quality of your life depends on the quality of your communication. And your communication today in this competitive world is truly incomplete without proper English. And the efforts that you put to master the English that's in GATE syllabus will not be confined only to GATE exam, it will also be useful to lots of other competitive examinations. Best of luck.